स्टूडेंट्स आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन नॉन्स्ट इक्वेशन. Now we know that Nernst equation gives the relation between potential of non-standard cell and the concentration of the ions. Okay, so again the equation is E cell equals E0 cell minus 0.059 divided by n logarithm of concentration of products divided by that of reactants. Here E cell is known as the cell potential of non-standard cell. E0 cell, if cell is standard, then what is its potential? That is our standard cell potential. This n is the number of electrons which are transferred from anode to cathode. Okay, it may be 2 or 1 or 3 or 6, etc. And here the concentration of products and reactants, these are decided based on the total cell reaction. देखो total cell reaction हम लिखते थे ना, this one. तो टोटल सेल रिएक्शन के हिसाब से हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स डिसाइड करेंगे. कैसे? सो वी नो दैट आफ्टर द एरो द टर्म्स आर नोन एज प्रोडक्ट्स and before the arrow the terms are known as reactants. Means these are the products and these are the reactants. Okay, now what is indicated by this equation and why is it required? This equation is required. So equation यहाँ पे required है, उसका reason ये है कि अगर आपको कोई सेल दिया है, for example you are given direct the symbolic representation. Suppose you are given Fe2 plus salt bridge, then Ag plus Ag. Okay, here nothing is written at down. That means concentration is 1 molar, temperature is 298 Kelvin, and here there is no gas. So if gas is passed then pressure must be 1 molar. पता है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन की टोटल 3 टर्म्स थी स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए. फर्स्ट टर्म कौन सी थी? टेम्परेचर मस्ट बी 298 केल्विन. नेक्स्ट इज प्रेशर, इट मस्ट बी 1 bar, and the concentration, it must be 1 molar. Here suppose here you are given the concentrations. Suppose here 0.5 molar and here 0.2 molar. Okay, and then you are given the potentials. Fe2 plus Fe minus 0.44 volt, Ag plus Ag, it is plus 0.8 volt. चलो अब इतना तो पता होगा. विच पोटेंशियल्स आर गिवन टू यू हियर? विच टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? गुड, both of the potentials are reduction potentials. Okay, and here you are given the symbolic representation. So directly we can write the cell reaction. चलो सेल रिएक्शन क्या होगी? At anode we can write Fe solid reversibly gives Fe2 plus 2 electron. Okay, so this is an anode. पता है ना, लेफ्ट हैंड साइड एनोड होता है, राइट हैंड साइड कैथोड होता है. कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? तो कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होगी. कौन सी?
Ag plus plus electron. सॉलिड एक्वियस मस्ट बी रिटन. आयंस होते हैं तो एक्वियस, मेटल्स होते हैं तो सॉलिड. ओके. Whenever we are writing the total reaction, at that time the number of electrons which are lost, which are gained, must be same. Now tell me, what will we do? Here 2 electrons, here 1 electron. So cathodic reaction is multiplied by 2, and then we can write the total reaction. Fe solid plus 2Ag plus aqueous reversibly gives Fe2 plus aqueous plus 2Ag solid. And now E0 cell. E0 cell का फॉर्मूला क्या होगा? E0 Z of cathode minus E0 Z of एनोड. चलो कैथोड कौन है? सिल्वर. उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? 0.8. और इसका है -0.44, तो माइनस -0.44. सो टोटल इज +0.25 एंड टोटल विल बी 8 and 4 12. 4 as it is. So E0 cell is 1.24. तो स्टूडेंट्स, till this we have done 18 times. मतलब हमने 18 क्वेश्चंस किए हैं टोटल यहाँ तक के. अब यहाँ पे एक्स्ट्रा आता है. आपको पूछा क्या है? कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल. चलो क्वेश्चन तो मैंने लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ. कैलकुलेट सेल पोटेंशियल फॉर गिवन सेल. ओके. चलो, तो अब यहाँ तक तो था ही अपना. तो अब हम अप्लाई करेंगे नन्स इक्वेशन. नन्स इक्वेशन क्या था? ई सेल इक्वल्स E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉगेरिदम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन दैट ऑफ रिएक्टेंट. चलो, प्रोडक्ट में कौन से आयंस होंगे? तो प्रोडक्ट में एक ही आयन, सिर्फ आयंस कंसिडर ही करेंगे हम. तो यहाँ पे है Fe2 प्लस डिवाइडेड बाय दैट ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट में कौन सा आयन है? सिल्वर. और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिसके जितने मोल्स हैं हम एज अ पावर लिखेंगे. देखो यहाँ पे Ag प्लस के 2 मोल्स है ना. तो अब आपको पता चल गया होगा कि समटाइम्स हियर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब किसी को 2 से और किसी को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, पता है ना. तो उसके आयंस के जितने भी मोल्स हैं वो हम एज अ पावर लिखेंगे. अगेन, आयंस के जितने भी मोल्स होते हैं वो हम एज अ पावर लिखेंगे. तो ई सेल इक्वल्स E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n इंटू लॉगेरिदम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स में जो भी आयंस होंगे वो हम लिख देंगे डायरेक्टली. अब देखो, ये दोनों कंसंट्रेशन आपको दे दिए हैं यहाँ पे. एक यहाँ पे दिया है, दूसरा यहाँ पे देखो कंसंट्रेशंस दे दिया है ना, तो वो हमें लिखना है. अब आपको पूछा है ई सेल, तो चलो E0 सेल हमने कैलकुलेट किया. यस, minus 0.059 upon n. What is n? N number of electrons which are transferred, that is 2. Logarithm of concentration of Fe2 plus कितना है? 0.5. और नीचे है 0.2 का स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये जैसे ही आप अपने स्टेप लिखा तो यहाँ पे केमिस्ट्री का काम कंप्लीट हो गया है. ओके, अब बचा मैथमेटिक्स अपना. ओके, तो कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी है? चलो एक बार फिर से देख लो. यू आर गिवन द सेल. जस्ट मिनट में एक्स्ट्रा लाइंस इरेज कर देता हूँ. ओके, चलो अब एक बार ध्यान से देख लो फिर से.
You are given the cell and the potentials. स्टैंडर्ड कंडीशन ये है. अब यहाँ पे टेम्परेचर हम 298 केल्विन ही रख रहे हैं और यहाँ पे गैस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए एंड इट इज़ नॉट प्रेजेंट, इट इज़ 0.5 एंड 0.2 मोलर. ओके, तो पहले सेल रिएक्शन लिख दो. सेल रिएक्शन मस्ट बी रिटन बाय यू, क्योंकि नन्स इक्वेशन उसी के हिसाब से हमें लर्न करना है. फिर से मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे आपको Fe2+ अपॉन Ag+ नहीं लिखना है. आपको कंपलसरी यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. पहले से ही ये हैबिट रखो. ओके, चलो एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन और फिर टोटल जैसे हम लिखते थे वो. और E0 सेल हमने कैलकुलेट किया. नन्स इक्वेशन जो भी है उसमें E0 सेल वो हमने कैलकुलेट किया 1.24 माइनस 0.059 एन. व्हाट इज एन? तो जो इलेक्ट्रॉन्स हमने कैंसिल किए थे ना वाइल राइटिंग द टोटल रिएक्शन, तो वो होगा अपना n, दैट इज 2 एंड इनटू लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Fe2+ 0.5, रिएक्टेंस का 0.2 और उसका स्क्वायर. स्क्वायर क्यों आया? चलो पता चल गया होगा. जिसके जितने मोल्स वो हम एज अ पावर लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट. चलो, तो अब यहाँ पे 1.24, पहले हमें इतना टर्म कंबाइन कर देनी है, इतनी टर्म्स. 0.0295 चलो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया और मल्टीप्लाइड बाय लॉगरिथम ऑफ. चलो ये 0.5 अपॉन 0.2 का स्क्वायर कितना होगा? 0.5 अपॉन 0.04 मतलब 5 एंड 50 अपॉन 4. सो ओवरऑल होगा 12.5. चलो एक बार चेक कर लेते हैं. 0.5 डिवाइडेड बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2. ओके, 12.5. और अब 12.5 का लॉगरिथम देखना है. पहले तो इंटीजर फाइंड आउट करेंगे. 1 पॉइंट समथिंग 12 का 5 में लॉगरिथम कितना होगा? 0.0969 ऐसे कुछ होगा. ओ 1.0969, यस. ओके, और अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. पॉइंट 0.3236. तो 1.24 माइनस 0.3236, तो 324 हम लिख सकते हैं. ओके, और अब फाइनली 3236, हाँ तो 324, हाँ डन हो सकता है. ओके, अब 1.24 माइनस 0.0324 ये होगा 1.2076 एंड दिस इज़ आवर आंसर. इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, अपने आगे के लेक्चर्स देखे होंगे तो इतना तो पता चल गया होगा. सिर्फ इतना ही नया आया, बाकी का आगे का तो हमने कंप्लीट कर दिया है. ओके, और उसमें भी सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही जो नन्स इक्वेशन दिया है उसमें टर्म्स हमें पुट डाउन करनी है. बाकी का तो फिर मैथमेटिक्स ही है. ओके, कई कबार बच्चे ऐसा करते हैं 1.24 में से पहले सब्सट्रैक्ट कर देते फिर मल्टीप्लाई करते हैं. ऐसा नहीं करना है. ओके, चलो इतना तो मैथ्स आना चाहिए कि पहले ये पूरी की पूरी टर्म उसको हमने सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया एंड देन आफ्टर सब्सट्रैक्शन. ओके, तो चलो ये हुआ अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल. ओके तो स्टूडेंट्स, चलो सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? Cell reaction we will write at anode Sn solid
gives Sn2 plus 2 electrons will be released. Okay, and at cathode, Au3 plus ion can gain 3 electrons to give the Au solid. And now here the number of electrons are different, so that LCM will be 6. So above our first reaction is multiplied by 3, so that's 6 electrons, and cathodic reaction is multiplied by 2, then here also we are getting 6 electrons. So total reaction can be written like this: 3 Sn solid plus 2 Au3 plus aqueous reversibly gives 3 Sn2 plus 2 Au solid, right? Now this is our total reaction. So that E0 cell will be E0Z of cathode minus that of anode. चलो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड इज Au, इट्स पोटेंशियल इज 1.4 वोल्ट and minus 0.14, right? So total is 1.4, then plus 0.14, so total is 1.54 volt. This is our E0 cell, right? And then apply the Nernst equation. चलो Nernst equation क्या है हमें पता है, it is E cell equals E0 cell minus 0.059 अपॉन 6 होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, देख लो, लॉगेरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स में सिर्फ हम आयन से कंसिडर करते हैं, डिवाइडेड बाय Au3 प्लस का स्क्वायर. ओके, तो अब टोटल कौन कौन सी टर्म्स हमारे पास E0 सेल है, और दोनों कंसंट्रेशंस भी दिए हैं, देख लो. So E0 cell is 1.54 minus 0.059 by 6, 0.059 by 6, 0.00983, लॉगेरिथम ऑफ Sn2 प्लस उसका कंसंट्रेशन 0.4 और उसका क्यूब डिवाइडेड बाय 0.01 और इसका स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे होगा 4 का क्यूब है 64, और 3 पॉइंट कट करना है टोटल, यहाँ पे 0.1 है इसलिए, तो 0.064 डिवाइडेड बाय 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01, so it is 640. तो 1.54 minus 0.00983 into logarithm of कितना आया 640 ना, yes 640. so 1.54 minus 0.00983 multiplied by logarithm of 640, 2.8062, 2.8062. ओके, तो ये आया 2.8062 मल्टीप्लाइड बाय 0.00983, तो 0.0276 0.0276. Okay, so 1.54 minus 0.0276, तो फाइनल आंसर इज 1.5124.
ओके तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए हैं। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी, तो उसमें आपको पहले तो 1 to 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगेन कितने? 1 to 20 क्वेश्चंस। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर तक इतने आपको कंप्लीट कर देने हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ।